हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम? वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, टुडे वी स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ chapter probability. The chapter is very important from term 1 syllabus, CBSE, ICSE and many other state and competitions. So let's start. देखो, इसमें what we are supposed to do in this question is what is the probability that a leap year has 52 Mondays. अब leap year में how many days in leap year? So a leap year has 366 days, and in a week as we know there are 7 days. So if we divide 366 by 7, so we have 2 days left over and we have 52 weeks. So all the days in a week will be repeated at least 52 times. All the days will be repeated, all the days will be repeated at least 52 times in a year. Now the question says how many what is the probability that a leap year has 52 Mondays. अब उसने कहा था 50 there will be 52 Mondays there, but there will be few more terms, like there will be 2 extra days, and that 2 extra days can be either it can be Monday, Tuesday, it can be Tuesday, Wednesday, it can be Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, and it can be Saturday and Sunday, and moreover it can be Sunday and Monday. Okay, so what is the probability that the leap year has 52 Mondays? So there should not be any other Monday other than these 52s. Okay, and we have to exclude these two occurrence when there can be a Monday. Okay, and what are the other possibilities we can have here is what are the other combination we can have? So there are total 7 combination, out of which 5 are there. 1 2 3 4 5 जिनमें Monday है ही नहीं. So favorable to us is where there is no Monday. ठीक है, तुम्हारे लिए favorable क्या है? Favorable days for us is when there are no Monday. So favorable is 5 combinations when there are no Monday, and total combinations are there 7. So what is the probability? What is the probability that the leap year has 52 Mondays? So probability of leap year having 52 Mondays, that there should not be these two occurrences should not be there, Monday, Tuesday and Sunday, Monday. So out of these 7, only 5 are favorable, and the total are 7 combinations. So 5 or 7 is the right answer, and here it is given to you. तो दोस्तों इस तरीके से आप करेंगे, और इसमें क्वेश्चन 2-3 तरीके से बनता है. एक तो लीप ईयर हैज 52 मंडेज, एक लीप ईयर नॉन लीप ईयर हैज 52 मंडेज और एनी अदर डे. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो आप देख सकते हैं इसको. ठीक है. Okay, so next we have if 2-digit number is chosen at random. So there are 2-digit number. If 2-digit number is chosen at random, then the probability that the number chosen is a multiple of 3. So एक 2-digit का number हमें लेना है, and the smallest 2-digit number is 10 and the largest 2-digit number is 99. ठीक है. But what we have to do here is we have to take a number that should be a 2-digit number, and that should be multiple of 3. There should 2 conditions need to be met. So it's the smallest 2-digit number multiple of 3 is 12. Okay, and the largest 2-digit number multiple of 3 is 99. So here we can see how many terms are there. So we can apply the formula of arithmetic progression, where an is equal to a plus n minus 1d. We can find out the number of terms there. ठीक है. तो इसमें n is the nth term, तो इसमें this is the nth term, a is the first term, है ना, d is the common difference. So we are talking about the multiple of 3.
सो एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी मल्टीपल ऑफ 3 ओनली, और ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पर ए एन क्या रख देंगे 99, दैट इज द nth टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म 12, n minus 1, so we are supposed to find it, and d is the common difference, ठीक है। सो 99 minus 12 upon 3 is equal to n minus 1, solving it further gives us 87, 87 upon 3 is how much, 3 2s and 3 9s, so n minus 1, so n is equal to 30. So 30 are the number of terms that are there from 12 to 99 which are multiple of 3. Okay, so these are the favorable terms which are 2-digit terms as well as multiple of 3. But if you look at the number of terms here, total number of terms, how many are there? So total number of terms, let's see, total number of terms, कितने टोटल टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड गोज अप टू 99, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 90, सो देयर आर टोटल 90 टर्म्स, ठीक है। एंड हाउ मेनी आर फेवरेबल टू अस, फेवरेबल कितने हमारे लिए, फेवरेबल है 30, these 30 terms are favorable to us which are multiple of 3 and 2-digit number. So if you are supposed to find the probability of 2-digit number which is multiple of 3, so that will be 30 upon 90, that will be 1 upon 3. So this is how you can find out the answer guys. I hope आपको समझ में आया होगा। कुछ भी इस पर डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बताए कमेंट बॉक्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर तो, और कुछ भी पार्ट आ रहा है तो अच्छे से करते जाइए, समझते जाइए। So let's move on and we can have one more question of the similar type. So guys here we have 2 dice are thrown together. देखो 2 डाइस को रोल किया गया साथ साथ या फिर उसको थ्रो किया गया, the conditions are quite similar, और ये these are the total possibilities when the 2 dice are thrown together or rolled simultaneously. So 2 डाइस को simultaneously thrown करो या roll करो, so these are the total possible case. Now what we are supposed to find is probability of getting the same number on both dice. तो same number on both dice कब कब आएगा, एक ये है, दोनों में सेम है, ये भी सेम है, दोनों डाइस पे सेम ही नंबर है। तो ऐसे कितने केस हैं हमारे पास, ऐसे हमारे पास टोटल 6 केस हैं, ठीक है। तो फेवरेबल है ना, फेवरेबल सिचुएशन और फेवरेबल इवेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पर, जब हमारे दोनों नंबर सेम है। और ऐसा कई कब कब होता है, जब 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, 4 4 होता है, 5 5 होता है, 6 6 होता है। एंड टोटल टर्म्स, टोटल इवेंट कितने हमारे, टोटल 36 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the same number on both dice, so that is favorable upon total, favorable upon total, favorable में कितने हैं 6 हैं, total में कितने हैं 36 हैं, so 1/6 is the right answer. Okay, so the guys this is how we can try to solve this type of question, and you should try to solve this type of question as well. So probability of getting the same number on both dice is, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है, तो 2 डाइस को अगर एक साथ उछालेंगे तो इस तरह की सिचुएशन होगी, और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो जब भी 2 डाइस साथ में उछाली जाएं या थ्रो की जाए, तो आप इस तरह की एक टेबल बना लीजिए, एज सुन एज पॉसिबल यू मेक दिस टेबल, आपको सिचुएशन अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रंस, तो 3 चिल्ड्रंस की फैमिली है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, तो एक लड़के होने की कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब देखो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एटलीस्ट का मतलब होता है गाइस मिनिमम, मिनिमम का मतलब कि कम से कम एक है ना, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 चिल्ड्रंस की बात हो रही है तो एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, सारे यार ऑल ऑफ देम आर फेवरेबल टू अस, 1 2 3 तीनों फेवरेबल है। बात समझ में आई? चलो तो इसमें देखो अगर पहले देखते हैं तो फर्स्ट बॉय कैन बी बॉय और गर्ल, सिमिलरली सेकंड कैन बी बॉय और गर्ल,
Similarly, third can be boy or girl. ठीक है. So this type of situation are there. So how many total possible cases are there? So ये देखो एक केस बनता है मैन बॉय 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 तीनों ही बॉय हो जाए, या फिर ये भी एक केस बनता है, देखो ध्यान से आप, है ना. सो ये केसेस बनते हैं. एंड हाउ मेनी टोटल केसेस आर देयर, यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम हियर. सो टोटल केसेस और टोटल इवेंट इज देयर. तो कितने बनते हैं देखो दोस्तों, बी बी बी, बॉय 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 हो जाए, या फिर बॉय बॉय गर्ल हो जाए, या फिर बॉय गर्ल बॉय हो जाए, या फिर बॉय गर्ल गर्ल हो जाए. उसके बाद गर्ल बॉय बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल. तो ये एक टोटल पॉसिबल केस है हमारे पास. अब उसने कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय. तो फेवरेबल कौन से हैं, इसमें एक बॉय हो, दो हो, या फिर तीन हो. सो जिसमें एक भी बॉयज है, दीज आर फेवरेबल टू अस. लेकिन ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. सो फेवरेबल, हाउ मेनी आर फेवरेबल इवेंट आउट ऑफ दिस 8? 7, क्योंकि उसमें कम से कम एक बॉय है और टोटल हमारे हैं 8. सो टोटल आर 8. टोटल इवेंट इज 8. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जैसे कि हमें मालूम है, प्रोबेबिलिटी इज द फेवरेबल अपॉन टोटल. और फेवरेबल क्या है, जो भी हमसे पूछा गया है, ये आने की, ये होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो जो होना है, जो करना है. तो जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय, तो एक कम से कम एक लड़का, दो लड़के या तीन लड़का, ये हमारे फेवरेबल. तो ऐसे केस जितने भी हम ऐसे केस बनते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दीज आर फेवरेबल टू अस. फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन टोटल. तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ठीक है, तो ये हमने किया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ठीक है. सो हाउ मेनी आर देयर, 7 अपॉन 8. सो 7/8 इज द राइट आंसर. ओके, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर एंड टिक द राइट आंसर. चलो दोस्तों, नया करते हैं क्वेश्चन. अब देखो इसमें क्या सिचुएशन है. ए बैग कंटेन कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 25. तो 1 से लेके 25 तक कार्ड है. ये कुछ सिमिलर सिचुएशन है कि जैसे आपने एक बैग में कुछ बॉल भर दी, या फिर एक बॉक्स में आपने कुछ कार्ड्स रखे जिसमें 1 to 25 नंबर्स हैं, या फिर एक बैग में बॉल रख दी जिसमें 1 से लेकर 25 नंबर हैं. अब आपने बॉक्स में बिना देखे हाथ डाला, डेफिनेटली देयर आर कार्ड्स इन इट, कुछ नहीं है और शिपरली नहीं निकलेगी इसके अंदर से. सो डेफिनेटली देयर आर कार्ड्स इन इट. तो कार्ड्स आपने निकाले एंड आपको बताना है कि एक कार्ड निकालना है. अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ दिस कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 and 3. 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. सो अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इज a number should be divisible by 6. So how many numbers are there from 1 to 25 which are divisible by 6? So can you find it out? There are 6, 12, 18 and 24. So these are favorable according to the situation given. ये favorable है हमारे. तो ये नंबर अगर आते हैं तो how many are there? These are 4 numbers, है ना. ये 4 में से कोई एक अपीयर होता है, तो इट मीन्स हमने जो भी प्रोबेबिलिटी थी, मतलब जो भी हमें निकालना था, वी गॉट द राइट वन. ठीक है, इनमें से चारों में से कोई एक भी आता है, सो वी गेट द राइट कार्ड. ठीक है. और टोटल हाउ मेनी आर देयर, टोटल उसने बोला है टोटल आर 25 कार्ड्स. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस कार्ड इज फेवरेबल अपॉन टोटल, एज वी कैन सी हियर, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ठीक है. सो फेवरेबल इज हाउ मेनी, 4 and total is 25. So 4 upon 25 is the right answer. Okay. So दोस्तों नया क्वेश्चन करते हैं फिर से. So which of the following can be probability of an event? अब इसमें देखो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था. So for a probability it should be greater than 0 and less than 1,
and it can be 0 or 1. So this can be the probability of any event. The probability of an event cannot be less than 0 in any possible case or cannot be more than 0. ठीक है, सॉरी more than 1, cannot be less than 0 and more than 1. जैसे सोचो, if you throw a die, so what is the possibility of getting a natural number less than 6? 100%, क्योंकि डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से नीचे ही आएगा, जो भी कुछ आएगा डेफिनेटली 6 आएगा या उससे नीचे आएगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 0, 6 से ज़्यादा है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 6, 6 से तक है, 6 से नीचे है ही नहीं, सॉरी 6 से ऊपर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ऑफ एनी इवेंट इज बिटवीन 0 to 1. उसने कहा है इनमें से कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो माइनस नहीं हो सकती, देखो क्योंकि 0 से छोटी हो जाएगी. 1.00 समथिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से जितनी, अगर 1.0000 100 जीरो लगा के भी एक 1.00 100 लगाओगे जीरो भी, उसके बाद 1 लिखोगे तो दैट इज ग्रेटर देन 1, तो वो भी नहीं हो सकता. 18/23 दैट इज लेस देन 1, और 8/7 ये भी 1 से बड़ा है, तो 18/23 दैट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ठीक है, तो राइट आंसर इज 18/23. ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? ये कंसेप्ट याद रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टेक द आंसर राइट अवे, है ना. चलो आगे चलते हैं ना. अब देखो, अगर जब कभी भी हम 52 प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे तो ये पिक्चर आप या तो माइंड में आपके होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, और या फिर आप इसको बना लीजिए. ठीक है, डेफिनेटली आपको इस तरह से पिक्चर नहीं बनाने की जरूरत है, आप सीधे लिख लो 1 2 3 4 5 6, या फिर याद भी रख सकते हैं. इसमें देखो होता क्या है, देयर आर 4 एस, है ना, ये सब एस हैं. ठीक है, ये सब जैक हैं, ये सब क्वीन है, ये सब किंग है. ठीक है, ये सब जैक हैं, क्वीन एंड क्वीन. सो देयर आर 4 जैक, 1 of each type, 4 क्वीन, 1 of each type, 4 किंग, 1 of each type. टाइप कितने हैं? स्पेड, किंग, सॉरी स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब. ठीक है, 26 आर रेड, 26 आर ब्लैक. तो ये जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए 4 एस. ठीक है, आप इसको बना लीजिए तो क्या फिर याद रहनी चाहिए. द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ फेस कार्ड. अब आपने एक वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए फेस कार्ड. तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं? 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, तो 12 जैक हमारे पास फेस कार्ड है. ठीक है, सो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन है? व्हाट इज फेवरेबल कार्ड्स अकॉर्डिंग टू द फेस कार्ड बीइंग फेवरेबल इज 12. ठीक है, total cards, how many are total cards are there? Total cards are there are 52. ठीक है, so what is the probability of the card drawn being a face card is 12/52. Solving it further, 6 26 3 13, so the answer is 3/13. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है इफ़ यू नो हाउ टू सोल्व इट, है ना. इसका थोड़ी सी पिक्चर अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, और बहुत लोगों ने कार्ड खेले होंगे ऐसे ही नॉर्मली घर में बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ. और जिन लोगों ने नहीं भी खेले हैं तो आप जाके एक मार्केट से 10-15 रुपये का, 20-50 रुपये का एक कार्ड का देख सकते हैं, फॉर जस्ट क्लास 10th पर्सपेक्टिव. ज़्यादा है उसको यूज़ नहीं करना है. ठीक है, और एक बार ला के देखो क्या क्या होता है उसमें, कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट ए प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स, है ना. उनका सिर्फ एक बार देख लो कैसे होते हैं, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स. अब देखो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक बैग में हमने कुछ बॉल डाली हैं, जिसमें से कुछ रेड हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ वाइट है. ठीक है, अब टोटल बॉल्स आर हाउ मेनी are total balls? So total balls are in a bag there are 3 plus 5 7, 7 plus 7 14 balls are there. 7 plus 3 plus 5 8. So how many balls are there? 3 plus 5 8, 8 plus 7 8 plus 7 is 15. So how many balls are there? 15 balls are there. So total balls are 15 balls. Okay,
And what is the question? Probability that the ball drawn from the bag at random will be neither red nor black. ना तो रेड होनी चाहिए ना ब्लैक होनी चाहिए, तो फेवरेबल क्या हो गई? व्हाइट. सो फेवरेबल इज favorable ball. How many are favorable ball? There are 5 balls which are favorable to us and these are of white color. ठीक है. So what is the probability of drawing what is the probability of drawing a ball at random from the bag that should not be red or black? ना तो red होनी चाहिए ना black होनी चाहिए. ठीक है. तो इसमें probability का फॉर्मूला लगा देंगे. probability है ना. probability में how many are favorable? 5. how many are total? 15. so we'll get the answer 1/3. so 1/3 again is the right answer. ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. इफ ए इवेंट कैन नॉट अगर देन इट्स प्रोबेबिलिटी. कुछ एक इवेंट हो ही नहीं सकता, जैसे हमने बताया कि आपने डाई थ्रो की और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 0 हो ही नहीं सकता, है ना. तो जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0. Which of the following cannot be the probability of an event? कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती? फिर से वही बात है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैन बी बिटवीन 0 to 1. 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बट उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती. 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. ठीक है. तो 1/3 कैन नॉट बी बताना है ना. तो ये हो सकती है. 1/3 इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. 0.1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1. 3% इज 3/100. so 0.03 greater than 0 less than 1. 17/16 is, अगर आप 17/16 करेंगे तो दिस विल बी डेफिनेटली 1:1/16 और फर्दर सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. तो 1 पॉइंट समथिंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्योंकि 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती. सीधी बात है. 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता. ठीक है. चलो नेक्स्ट करते हैं. इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, यानी ये हो ही नहीं सकता. ऐसे की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती? द प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट क्लोजेस्ट टू, जो इवेंट हो ही नहीं सकता. ऐसे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसे की प्रोबेबिलिटी 0 होगी. और 0 किसके क्लोज है? फर्स्ट वाले क्लोज है ना, क्योंकि इससे सारे बड़े नंबर ही हैं. 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01. 0.01 इज ग्रेटर देन 0.001 और ये 0.001 इज ग्रेटर देन 0.0001. ठीक है. तो अगर फिर भी हमें बताना है कि मोस्ट अनलाइकली इवेंट जो हो ही नहीं सकता लगभग, तो उसकी लगभग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 0 के लगभग होगी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है. और देखो नया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी. एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, तो इसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर मान लो एक के होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसके ना होने की कितनी होगी? 1 - p. ठीक है. ये कंडीशन है. तो अगर एक की होने की पी है तो दूसरे की क्या होगी? 1 - p. एक की होने की या ना होने की पी है तो दूसरे की होने की या ना होने की 1 - p हो जाएगी. ठीक है. जैसे मान लो सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1 - 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है. चलो नेक्स्ट. द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी. प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ऑकरेंस, तो अगर ऐसे परसेंटेज में दिखाएं तो वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती? तो वो लेस देन, अब परसेंटेज में अगर दिखाएं मान लो तो 100% कितना होगा? 100% इज 100/100 1 होगा, है ना. तो ग्रेटर देन किससे कम नहीं हो सकता? लेस देन 0, है ना. लेस देन 0 से 0% का मतलब है 0/100 दैट इज 0. तो 0 से छोटा नहीं हो सकता, है ना. वो 0 से छोटा नहीं हो सकता. 0 से छोटा नहीं हो सकता. अगर पर्टिकुलर ऑकरेंस की बात करें तो 0 से छोटा नहीं हो सकता. लेस देन 100 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 1 to 100 हो सकता है अगर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में दिखा रखी है. कुछ भी हो सकता है, होल नंबर हो कुछ भी, लेकिन होल नंबर हो, ये बात भी ठीक है. अगर परसेंटेज को 100 तक लेके जाएंगे तो होल नंबर ये भी मान सकते हैं, लेकिन 0% में 0% से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से नीचे तो हो ही नहीं सकता. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1. बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ पी ए डोनेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन पी ए
पी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, नहीं, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यस, -1 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स कैन बी विल बी 0 से 1, ना तो 0 से छोटी हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है, ना -1 से 1 हो सकती है, क्योंकि -1 भी लेस देन 0 है, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकती, वो भी गलत है। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखो 52 कार्ड की पिक्चर अगर आपको याद है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन कर दोगे, बिना पिक्चर करके देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए रेड फेस कार्ड, तो गाइस आपको याद होगा 26 रेड फेस थे, सो हाउ मेनी रेड फेस कार्ड आर देयर, रेड कार्ड 26 थे, हाउ मेनी रेड फेस कार्ड कितने थे, 26 टोटल रेड थे, जिसमें से रेड फेस कितने थे, हाँ रेड फेस थे 6, क्योंकि टोटल 12 थे और 3 रेड थे, ठीक है। तो जैक क्वीन किंग, ठीक है, तो हार्ट के हो गए 3, तो 3 डायमंड के हो गए, तो 6 टोटल रेड फेस कार्ड हो गए। फेस कार्ड मत बोलना, रेड कार्ड 26 है, फेस कार्ड रेड फेस कार्ड होते हैं रेड के 6, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ड्रॉन बीइंग ए रेड फेस कार्ड इज 6/52। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 26, तो 3/26 इज द राइट आंसर, उससे आगे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। अब गाइस नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, number of years in a non-leap year, number of days in 365, ठीक है, और number of days in a week, तो वो होते हैं 7। अब मान लो हमें नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 35, 1 and 5, 7 2 14, so there is 52 weeks, so each day in a week will be repeated at least 52 times। उसने कहा 52 संडे होने चाहिए, ठीक है, और संडे अब एक दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा कि वो क्या होना चाहिए, संडे ही होना चाहिए वो, तो संडे ही अगर ये होगा तो 52 संडे यहाँ पर हो गए, एक एक्स्ट्रा यहाँ हो गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज ए 53 संडे, तो 1/7, क्योंकि ये 1 ही सेलेक्ट होना चाहिए आउट ऑफ 7, सो 1/7 इज द राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपकी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भी अगर किसी चैप्टर पर आपको PDF चाहिए, वीडियो चाहिए, आपको MCQs के बारे में चाहिए, या फिर कुछ और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इस देखते जाएँ, कमेंट में बताते जाएँ कि आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो व्हेन ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को हमने थ्रो किया, एक डाई को थ्रो किया, तो डाई को जब थ्रो किया तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ एक हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ओड नंबर लेस देन 3, तो ओड भी होना चाहिए और 3 से छोटा भी होना चाहिए, तो ओड नंबर, सो फेवरेबल वट एवर इज आस्क्ड इज फेवरेबल टू अस, तो फेवरेबल क्या है, इट शुड बी ओड नंबर और लेस देन 3, तो ओड नंबर लेस देन 3 कितने हैं, 1 ही है सिर्फ, ओड नंबर लेस देन 3 ओनली 1 है ना। 2 इज इवन नंबर और 3 से छोटा होना चाहिए, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। सो डाई इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर लेस देन 3, तो एक ही फेवरेबल है, ओनली 1, ठीक है। एंड टोटल हाउ मेनी आर देयर आर 6 पॉसिबल केस, 1 2 3 4 5 6, और ये आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि उसने क्या बोला है, लेस देन 3, ओड भी होना चाहिए और लेस देन 3 भी होना चाहिए, तो लेस देन 3 के लिए ओड है तो 1 ही, ये वाला ही फेवरेबल है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर,
probability of an event is 1/6. So this is how you can solve this type of question. The questions are not very difficult, you have to just visualize the situation. थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश करता है वो, बट दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक नया है. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड. अब कितने कार्ड है? 52 हमेशा होते हैं. इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट ए एस ऑफ हार्ट. द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई. ई क्या है? कार्ड इज नॉट ए एस ऑफ हार्ट. एस ऑफ हार्ट कितने हैं? इवेंट इज कार्ड विच इज नॉट एस ऑफ हार्ट. एस ऑफ हार्ट हैं कितने एक्चुअली में? एस ऑफ हार्ट है हमारे ओनली 1. ठीक है, द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई. तो जितने भी सारे अदर देन दिस हैं, सो एस ऑफ हार्ट हमारे हैं कितने? एस ऑफ हार्ट हमारा सिर्फ एक है, ओनली 1. ठीक है, तो बाकी उसने कहा शुड नॉट बी द एस ऑफ हार्ट. सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई. सो फेवरेबल आउटकम, तो 52 में से एक माइनस कर दो, सो बाकी सारे हमारे लिए फेवरेबल हैं. तो 51 आर द फेवरेबल आउटकम व्हेन द सिचुएशन इज, व्हेन द इवेंट इज दैट द कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट. एस ऑफ हार्ट एक ही है. 4 एस होते हैं, 1 ऑफ ईच टाइप. एस ऑफ हार्ट एक ही होता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन लॉट ऑफ 400 इज 0.0035. ठीक है, तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400. तो मान लो x, लेट देयर आर x बैड एग्स. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है x विच आर बैड, है ना, अपॉन टोटल इज इक्वल टू, दिस इज द प्रोबेबिलिटी 0.035. So probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.035, the number of bad egg. So we'll solve it further. So 0 x upon 400 is equal to 0.035. So x is equal to 0.035 into 400. So x comes out to be, how much that will be? ठीक है, तो इसको करो 4 into 3 35, 35 2 70, 140 हो जाएगा ये, एंड 20 आफ्टर इट, है ना. और उसके बाद हम बनेंगे 3. सो देर आर 14 एग्स, 14 यू कैन से बैड एग्स. ठीक है, सो हाउ मेनी बैग्स आर देयर, हाउ मेनी एग्स आर देयर विच आर बैड. सो 14 एग्स आर बैड व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन finding a or getting a bad egg in the lot of 400 is 0.035. the number of bad egg is 14. ठीक है, ये भी समझ में आया होगा आई होप आपको. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं. अगर अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08. ठीक है, इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, सो हाउ मेनी टिकट्स हैड शी बॉट. सो अगेन द सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर. लेट द नंबर ऑफ tickets he bought is equal to x, है ना. so how many favorable are there, favorable event are there, x are the favorable and total are 6000. so probability का फॉर्मूला क्या होता है? probability says favorable upon total, favorable upon total. so how many are they are favorable? so x are favorable and total are 6000 and that is equal to 0.08. so what is the value of x here? x की क्या वैल्यू आती है दोस्तों? यहाँ पर देखो ध्यान से, 0.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. सो दैट विल बी 48, 1 2 3 3 0 लगा दो, यहाँ की 3 0 थी, उसके बाद 2 डेसिमल काट दो, सो दैट इज 480. सो 480 इज द नंबर ऑफ tickets he has bought. 480 is the number of tickets she has bought, in which she can say that she has her chance of winning the lottery is 0.08. so 480 is the
right answer. I hope you have understood this part. Okay, so okay guys, this is it then. Thank you very much for your time. So I hope you have liked the video, and if you have liked it, so please do like the video. Please subscribe to the channel and share it with your friend if you like the video. And if you have any difficulty in solving any of the question, or अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक इन द कमेंट बॉक्स. So till then, take care. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.